हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी बाबा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और स्टडी अपना कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर्स क्लास 10th पार्ट 3। बाकी के हमने दो पार्ट्स में क्या किया था, कंसेप्ट सीखे थे और उसके रिगार्डिंग हमने लास्ट सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के फर्स्ट पार्ट, ठीक है, रिलेटेड टू पार्ट 3। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का आपका यहाँ पे जो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो जो आपको जो कंपोजिट नंबर गिवन है, आपको इसको रिप्रेजेंट करना है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इट इज 140। 140. 140 by, you can divide 140 by 2. 2 7 ja 14, 200. Okay. Now 2 3 ja 6 after 1 carry, that is 2 5 ja 10. Now 5 7 ja 35 and that is 7 1 ja 7. Clear? 140 को आप रिप्रेजेंट करेंगे किस तरह से, 140 इक्वल टू 2 multiple of 2 multiple of 5 multiple of 7, and here the prime number is 2 times, so you can write 2 raised to power 2, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोडक्ट 5 and then 7. now it is the product of prime numbers, ठीक है। हमें आस्किंग क्या था, product of its prime number. So in this way 140 is equivalent to 2 raised to power 2, 5 and then 7. So it is your answer. That's all. इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर, सेम क्वेश्चन 156। 156 को आपको रिप्रेजेंट करना अगेन। 156, okay, so it is divisible by 2, so that's why 2 7 ja 14 after taking 1 carry, so it becomes 16, so 2 8 ja 16. now 2 3 ja 6 after taking 1 carry, it becomes 18, so 2 9 ja 18, so 39 after, if you add 9 plus 3 you get 12, and 12 is divisible by 3, so it is divisible by 3, so you take 3 1 ja 3 3 3 ja 9. Clear? And you see 13 is a prime number, and every prime number is divisible by same number, so that's why 13 1 ja 13. So you have to represent 156 is as the product of prime numbers, so you have to write 2 multiple of 2 multiple of 3 multiple of 13. You see there is 2 times of 2, so that's why you write 2 raised to power 2, then 3 and then 13. That's all. So it is the 156 as the product of prime factors. That's all. Understood? Okay. So now next question you have to given, that is 3825. So 3825. So you see 3825 is divisible by 3 if you add all digits. So 3 1 ja 3, there is 8, so 3 2 ja 6, after taking 2 carry it becomes 22. now 3 7 ja 21, and then after taking 1 carry it becomes 15, so 3 5 ja 15. now again it divisible by 3, so 3 4 ja 12, then 3 2 ja 6, and after taking 1 carry it becomes 15, so 3 5 ja 15. Clear? now 425 it is not divisible by 3, it divisible by 5 because unit digit is 5, so 5 8 ja 40, and then after taking 2 carry it becomes 25, so 5 5 ja 85. now 5 1 ja 5, and then after taking 3 carry it becomes 3, after taking 3 carry it becomes 35, so 5 7 ja 35.
and 17 is a prime number, so every prime number is divisible by same number, so that's why 17 1 ja 17. So 3825 can be write 3 multiple of 3 multiple of 5 multiple of 5 multiple of 17, and again you write 3 is 2 times, so you write 3 raised to power 2, 5 is 2 times, so 5 raised to power 2, and 17 is 1 time, so that's why you have to write similar 17. So 3825, it is the product of prime factors. Okay, that's all. Now we move, next question is it is 5005. So 5005, clearly you see there is one's digit is 5, so one's digit is 5, so that's why it is divisible by 5. So 5 1 ja 5, 0, 50 times 0 and 50 times 0, and then again 5, it is 5 1 ja 5. Now it divides by 7, 7 1 ja 7, आफ्टर टेकिंग 3 कैरी, 3 कैरी लेने के बाद आपका क्या हो जाएगा ये 30, ठीक है. सो 7 4 जा 28, सो इट बिकम्स आफ्टर टेकिंग 2 कैरी इट बिकम्स 21, 2 कैरी लेने के बाद ये क्या हो जाएगा आपका 21. सो 7 3 जा 21. नाउ इट डिवाइड्स बाई 11, सो 11 1 जा 11, ठीक है. 14 11 1 जा 11, एंड आफ्टर टेकिंग 3 कैरी इट बिकम्स 33. Okay, so 11 3 ja 33. Now 13 is purely prime numbers, so it is divisible by 13. So 13 1 ja 13. Clear? So 5005 can be write 5 multiple of 7 multiple of 11 and multiple of 13. Clear? So it is the product of prime numbers. ये आपका क्या है? Product of prime numbers. Clear? Okay, so now move on next question, which is 7429. 7429. बताइए ये किससे कैंसिल होगा आपका? 7429 किससे डिविजिबल है? 2 से नहीं, because there is 9, once digit is 9, so that's why it is not divisible by 2. 3, no, after adding, no, 7 4 11, 11 2 13, 13 9, no, it is not divisible by 3. It is divisible by, I think, 17. Yes, 17 times. So 17 4 ja 68 है ना, 17 4 ja 68. So 74 and we reach 68, so what will be carry? 74 minus 68, 6, that is 62. Clear? So 62 17 क्या हो जाएगा आपका? 62, दैट मीन्स 17 3 जा 51, ठीक है. 17 3 जा कितना होता है आपका? 51, ठीक है. इसके बाद आपको क्या करना है? 17 7 जा 119, ठीक है. चलिए इसके बाद कितनी बार लेके जाएं इसको? 19 से कितने टाइम्स लेके जाएं? 19 2 जा कितना होता है आपका? 38, ठीक. उसके बाद क्या हो जाएगा? 19 2 जा 38, दैट मीन्स 5, यानी 57. अब क्या हो जाएगा? 19 3 जा कितना होता है आपका? 57 होता है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है आपका? प्राइम नंबर. प्राइम नंबर क्या है आपका? 23. तो क्या करेंगे अब? 23 को 23 से डिविजिबल करेंगे तो कितने टाइम्स के लिए करेंगे हम? 1 टाइम्स, ठीक है. तो 23 1 जा क्या हो जाएगा आपका? 23, ठीक है. चलिए इसके बाद क्या करना है आपको? 7429 कैन बी राइट 17 इंटू 19 इंटू 23. क्लियर है? सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. ओके, चलिए ये अभी तक हमने क्या किया है? एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट्स थे आपके, और 5 के पाँचों पार्ट्स आपके क्या थे? हमको क्या करना था? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स करना था. दैट मीन्स हमको उसका एलसीएम लेना था, और एलसीएम लेने के बाद जो उसके प्राइम फैक्टर्स थे उनको हमको क्या करना था? राइट डाउन करना था, ठीक है. चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट
LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, LCM फाइंड करना है दोनों नंबर्स का, उसके बाद आपको HCF फाइंड करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस आपको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या करना है, दो पार्ट्स हैं, पहले आप इंडिविजुअली LCM और HCF फाइंड करेंगे, उसके बाद आपको करना है वेरीफाई, कैसे, LCM और HCF को मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपको गिवन है, देखिए 26 एंड 91 क्या है, आपको दो गिवन नंबर्स है, इनको आप क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या होगा, LCM इंटू HCF। ये मैंने ये जो कल का सेशन था आपका, लास्ट सेशन, वो हमने डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो उसको देख कर उसके बाद ये सेशन करेंगे लेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, चलिए सो करते हैं इसको। देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पे 26 का यहाँ पे आप करेंगे क्या, LCM इंडिविजुअली, कैसे, इंडिविजुअली। ठीक है, चलिए करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 13 1 जा 13। ठीक है, इसके बाद देखिए 91 किससे डिविजिबल है, बताइए, 7 से डिविजिबल है, यस, 7 1 जा 7 and after taking 2 carry it becomes 21, so 7 3 ja 21, so 13 and 13 is a prime number, so it is divisible by 13। क्लियर है, ठीक। अब आपको क्या करना है, 26 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर जो आपने अभी इसके पहले सीखा है उसको आपको एज इट इज लिख लेना है। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीपल ऑफ 13, क्लियर। और 91 को हम क्या लिखेंगे बताइए, 91 को हम लिखेंगे 7 मल्टीपल ऑफ 13, क्लियर है, ठीक। अब हमको करना क्या है, LCM फाइंड करना है और HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो बताइए LCM क्या हो जाएगा आपका, हमने कल डिस्कस किया था कि जो LCM होता है वो क्या होता है, LCM जो होता है आपका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हैविंग ग्रेटर पावर या ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे आपका 2 13 7 एंड 13 कितने प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं आपके, 2 7 एंड 13। अब यहाँ पे 13 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, सॉरी ये 13 ये 26 का है और ये 13 किसका है आपका, 91 का प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जितने डिफरेंट प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं उसको तो आपको लिखना ही लिखना है। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ डिफरेंट प्राइम नंबर्स क्या है 7। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पे 13 की पावर कितना है 1 और यहाँ पे भी क्या है 13 की पावर 1। कल हमने बताया था कि जब आप LCM फाइंड करेंगे तो जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे, अगर देखिए यहाँ पे बेस दोनों का इक्वल है यानी कि सेम प्राइम नंबर है, तो हमें क्या करना होता है, जो ग्रेटर होता है वो हमें लिखना होता है। लेकिन जब हम यहाँ इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो बताइए यहाँ पे दोनों क्या है, पावर सेम है, तो आप किसी को एक लिखिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या 13, क्लियर है। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, 2 7 और 13 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 7 जा 14 और 14 और 13 को आप करेंगे क्या मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 14, हाँ 2 7 जा 14, 14 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 182, यस। तो LCM आपका क्या आया आपका 182। ठीक है, अब क्या करना है आपको, HCF बताना है। HCF कैसे फाइंड करेंगे, HCF क्या होता है आपका, यहाँ पे जो दो ऐसे प्राइम नंबर्स जो आपके कॉमन हो और जो लोवेस्ट पावर हो। ठीक है, तो 2 और 7 तो आपके कॉमन है नहीं, कॉमन क्या है आपका 13। ठीक है, तो आपका 13 लिखेंगे, लेकिन है आपको लिखना क्या था यहाँ पे लोवेस्ट पावर, यहाँ तो दोनों पावर सेम है तो आपको क्या हो जाएगा HCF 13। ठीक, अब आपको करना क्या था, वेरीफाई, आपको करना था वेरीफाई, क्या होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स था तो कैसे करेंगे, LCM कितना है आपका यहाँ पे 182 और HCF कितना है आपका 13 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या दिया है आपका 26 और 91। तो 182 और 31 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका 2366 और 26 और 91 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2366। तो इस तरह से आपका LHS और RHS क्या हो जाएगा आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इन दिस वे वी हैव प्रूव वेरीफाइड, क्लियर। सो दैट्स
सो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो बाकी बचे हुए हैं इसको करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में आप करिएगा। सो थैंक यू एवरीवन।